شادی کے بعد میں گھر پر بالکل اکیلی رہتی تھی۔ سسر کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ میں نے شوہر کو کہہ کر اپنے پاس بلوا لیا۔ میرے سسر کی عمر 80 سال تھی، لیکن جب میں گھر کا کام کرتی تو مجھے عجیب نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ اگر میرے سینے سے دوپٹہ سرک جاتا تو بوڑھا سسر دیکھ کے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتے تھے۔ ایک دن میں گھر کے کام کر رہی تھی تو کہنے لگے، بہو مجھے گرم گرم دودھ تو پلا دو۔ میں دودھ لائی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اچانک اس گھر میں آج جو ہوا تھا اس کو دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی تھی۔ اگر ابھی میں کچھ نہ بولتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ اپنے شوہر سے بات کی تو شاید میرا گھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا۔ میرا نام مریم ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی۔ خواب بہت سارے تھے دل میں، لیکن قسمت نے ہمیشہ مجھے امتحانوں سے گزارا۔ بابا بہت سخت مزاج انسان تھے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے بہت محبت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، بیٹی زندگی میں 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی بات کبھی نہیں ٹالنی چاہیے، ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شوہر، کیونکہ یہ دونوں تمہاری عزت، تمہارا سہارا اور تمہاری حفاظت ہوتے ہیں۔ میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتی تھی، لیکن شاید تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو دوسرے ملک میں کام کرتا تھا۔ نکاح کے وقت تو بہت پرسکون اور مہذب لگا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے خوش رکھے گا اور میری ہر خواہش پوری کرے گا۔ شادی کے چند دن بعد ہی اس نے میرے لیے شہر سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ لے لیا۔ جب ہم پہلی بار وہاں گئے تو میں حیران رہ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی ہلکی سی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا صوفہ سیٹ رکھا تھا، دیوار پر سفید پردے لگے ہوئے تھے، کچن صاف ستھرا اور چمکتا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیسا لگا تمہیں؟ میں نے کہا، بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا ڈر لگتا ہے، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ تو وہ ہنسا اور بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑا شہر ہے، یہاں ہزاروں عورتیں اکیلی رہتی ہیں۔ میں تمہیں ایک فیملی کا نمبر دے دیتا ہوں، وہ میرے دوست کی فیملی ہے، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ان کو فون کر لینا، وہ لوگ قریب ہی رہتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل کے اندر ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے ہر سہولت مہیا کرا دی تھی۔ فریج میں راشن رکھا تھا، کپڑوں کی الماری میں نئے کپڑے رکھے تھے اور بولا تھا کہ پیسے وہ ہر مہینے بھیج دیا کرے گا۔ جاتے وقت بولا، مریم 2 سال کی تنگی ہے، بس 2 سال گزر جائیں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، میں واپس آ جاؤں گا اور ہم دونوں اکٹھے رہیں گے۔ میں نے بھی دل سے دعا کی کہ ایسا ہی ہو، لیکن جانے سے 1 ہفتہ پہلے ایک بات نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے کسی سے پتہ چلا کہ اس کے والد صاحب بھی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ شادی کے وقت اس نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نکاح کے وقت بھی میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا تھا، مگر کسی نے نہیں بتایا کہ وہ اس کے والد ہیں۔ ایک شام جب ہم کھانے کے بعد بیٹھے تھے تو میں نے آہستہ سے پوچھ لیا، آپ کے والد صاحب بھی ہیں؟ تو وہ چونک گیا اور بولا، ہاں ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بولا، تو وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے، اس لیے میں نے بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا، مگر وہ بوڑھے ہوں گے، آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ وہ خفا ہو گیا اور بولا، مریم میں جو کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں، تمہیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل کے اندر ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ سوچتی رہی کہ جو شخص اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، مگر جا رہا تھا اکیلا، کہہ رہا تھا کہ تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، خرچے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بالکل مطمئن تھا، جیسے اکیلا جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ میں مسکرا دی، مگر دل کے اندر اداسی کی گہری لہر اتر گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا شوہر مجھ سے نہیں بلکہ مجھ پر ترس کھا کر شادی کی ہے، اور اب جب اسے ذرا سا بوجھ لگا تو وہ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ میں بیڈ پر لیٹی چھت کی طرف دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ آخر میں نے کیا غلط کیا ہے، کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، اور کیوں میں ایک ایسے انسان کے ساتھ جڑ گئی جو اپنے والد کی عزت تک نہیں کر سکتا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میری زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اتنی جلدی میرے شوہر مجھے چھوڑ کے چلا بھی گیا، مجھ سے کوئی دل کی بات بھی نہیں کی۔ میں اس کے بتا بھی نہیں سکی کہ مجھے اکیلے رہنے میں ڈر لگتا تھا۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن میں اپنی ایک کزن کے گھر رہتی تھی اور اس کی جوان بیٹی کے ساتھ نہیں سویا کرتی تھی۔ اب مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے 3-4 دن کس طرح اس فلیٹ میں گزارے میں ہی جانتی ہوں۔ کبھی رات کو ذرا سا دروازہ ہلتا تو دل تھک سے رہ جاتا، کبھی باہر سے کوئی بلی کی آواز آتی تو میں چادر سر تک کھینچ لیتی تھی۔ فلیٹ خوبصورت ضرور تھا، مگر خاموشی ایسی تھی
थी कि अपने कदमों की चाप भी डरा देती थी। हर रात में जागती रहती थी, रोशनी जलाए रखती थी, बस ये सोचती रहती थी कि काश कोई हो जिससे बात कर सकूं। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और शौहर को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं, जो खर्चा यहाँ हो रहा है वह वहाँ हो जाएगा। तो कहने लगा कि ऐसी बात नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं खुद तुम्हें पहले ना ले जाता। मैं बड़ी परेशानी से बोली, तुम्हारा मसला क्या है, बताओ तो सही। मैंने कहा कि मुझे रात को अकेले डर लगता है। उसने हंसकर कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा कि टाइम नहीं मिला। वो बोला कि कुछ नहीं हो सकता, वैसे भी अपने डर से लड़ना चाहिए। तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम अब किसी की बीवी बन चुकी हो, कल किसी की माँ बनोगी। तुम अपने दिल से इस डर को निकालना चाहिए। मैंने चुपचाप फ़ोन बंद कर दिया। दिल भर आया था, आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो नहीं समझेगा। अपने डर से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता, चाहे उम्र 40 की हो क्यों ना। जब अंधेरा होता है तो इंसान के अंदर के सारे खौफ जाग उठते हैं। इसी डर के आलम में एक दिन मैंने सोचा कि मैं इस फैमिली के घर चली जाऊं जिसका नंबर मेरे शौहर ने दिया था, ताकि थोड़ा वक्त किसी के साथ बातों में गुजर जाए। मैं वहाँ गई तो वे लोग बहुत अच्छे निकले। औरत ने बहुत इज्जत से बिठाया, चाय पिलाई और बड़े प्यार से बात की। लेकिन मैं वहाँ रात नहीं गुजार सकती थी। दिल कहता था कि घर खाली है, वापस जाकर देखूं सब ठीक तो है ना। बातों बातों में उस औरत ने मुझसे कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे शौहर के वालिद साहब इसी शहर में रहते हैं। मैं चौंक गई। मैंने कहा हाँ सुना है, वो किराए के घर में रहते हैं। तो वह बोली कि उनकी हालत बहुत बुरी है, वो 80 साल के हैं, ना उनके पास कोई नौकर है ना कोई देखभाल करने वाला। तुम्हारे शौहर बस पैसे भेज देते हैं और वह बेचारे खुद ही सब कुछ करते फिरते हैं। ये सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने आहिस्ता से कहा कि ये तो बहुत बुरी बात है, मैंने तो कभी बाप का सुख पाया ही नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनको अपने घर बुला लेती, उनकी खिदमत करती और इस तरह मुझे अकेले भी ना रहना पड़ता। वो औरत बोली फिर बुला लो ना उनको, क्योंकि अगर वह वहीं पर इस दुनिया से चले गए तो शायद तुम भी जिम्मेदार होंगी, क्योंकि अब तुम्हें सब पता है। मैं खामोश हो गई, लेकिन उसके अल्फाज मेरे दिल में घर कर गए। मुझे लगा वह ठीक कह रही है। मैंने सोच लिया कि मैं अपने शौहर से बात करूंगी और उनके वालिद साहब को अपने घर बुला लूँगी। मुझे ये रास्ता आसान लगा और सही भी लगा, क्योंकि अगर वे इतने ज़ईफ़ हैं तो वह अकेले कैसे रह सकते हैं। और अगर बूढ़ी हो जाए तो किसी न किसी तरह अपना खाना पका लेती है, मगर पानी भी भर लेती है, मगर एक बूढ़ा मर्द कैसे सब कुछ अकेला करेगा। मुझे लगा जैसे मेरे शौहर बड़ा ही संगदिल इंसान है, जिसने अपने बूढ़े बाप को वहाँ छोड़ दिया और बस खर्चा भेजता रहा। ऐसे ही उसने मुझे भी यहाँ छोड़ दिया था और ख़ुद अपनी दुनिया में मसरूफ़ था। फ़ोन भी रोज़ नहीं करता था, कहीं वह मुझे भी हमेशा के लिए भूल ना जाए। इसलिए मैंने दिल में पक्का इरादा किया कि मैं उनके वालिद साहब को अपने घर बुला लूँगी, ताकि उनकी खिदमत भी हो और मेरी तन्हाई भी ख़त्म हो। मेरे शौहर के साथ मेरा वैसा भी कोई मामला नहीं था कि बंदा कहे कि याद आ रही है आपकी, या फ़ोन पर कोई रोमांटिक बातें करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी बातों में वो प्यार, वो एहसास ही नहीं था जो एक शौहर की ज़ुबान से निकलना चाहिए। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या सब शौहर ऐसे ही होते हैं या मैं ही बदनसीब हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसको फ़ोन किया और सीधा कह दिया कि आपके वालिद साहब बहुत बुरी हालत में हैं, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका गुनाह तो आप उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ मुझे भी गुनाह मिलेगा अगर मैं खामोश रही। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर आ जाएं, मेरे साथ रहें, मैं उनकी खिदमत करूँ। मेरे शौहर की आवाज़ बदल गई। वो सख्त लहजे में बोले तुम्हें ये सब किसने बताया। मैंने कहा बस मुझे पता चल गया है। उसने कहा कि देखो जिस काम का पता ना हो उसमें नहीं बोलना चाहिए, तुम इस मामले में पड़ोगी तो नुकसान उठाओगी। मैंने कहा कि मुझे किसी नुकसान का डर नहीं, मैं तो सिर्फ खिदमत करना चाहती हूँ, मुझे तो सवाब मिलेगा। आप मेरी बात मान लें, उनको मेरे पास भिजवा दें या फिर उनका पता बता दें, मैं खुद जाकर उनको ले आऊँगी। मेरे शौहर ने गुस्से से कहा कि मुझे तुम्हारी ये हरकत, ये फ़ैसला पसंद नहीं आएगा। मैंने रूहान सी आवाज़ में कहा कि मैं अकेली नहीं रह सकती, किसी दिन मेरा दिल फट जाएगा। आप तो कह गए थे कि 2 साल में मैं तुम्हें ले जाऊंगा और हर दूसरे महीने मिलने आऊँगा। 3 महीने से तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। हमारा झगड़ा हो गया। उसने कहा कि करो जो मर्ज़ी तुम्हें करना है। मैंने कहा कि हाँ करूँगी। कुछ देर बाद उसने मुझे पता भेज दिया। मैं अगले ही दिन वहाँ गई तो हैरान रह गई। मेरे ससुर तो बहुत नेक और नरम दिल इंसान लगे। मुझे देखकर मुस्कुरा दिए और बोले तुम ही मेरी बहू, बेटा नहीं बेटी कहलाओगी तुम्हें, क्योंकि मेरा तो कोई बेटी नहीं है, अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी। मैं उनके कदमों में बैठ गई और दिल से कहा कि अब्बू अब आप मेरे साथ चलें, मैं अकेली रहती हूँ, आप मेरे साथ रहें, मैं आपकी खिदमत करूँगी। उनके घर की हालत बहुत बुरी थी, गंदगी, कूड़ा और बदबू हर तरफ थी। उनके कपड़े भी मैले थे। मैंने उनसे कहा कि बस
اب ابو آپ میرے ساتھ چلے۔ انہوں نے منع نہیں کیا اور خاموشی سے میرے ساتھ آ گئے۔ میں نے ان کے لیے اپنے گھر کا دوسرا کمرہ صاف کیا، ان کے سارے کپڑے دھوئے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ان کی دوائیاں لائیں، اور جب وہ شام کو صاف لباس میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو مجھے دل کے اندر سکون ملا۔ پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ مجھے کبھی باپ نہیں ملا تھا اور اب وہ میرے گھر میں میرے سامنے بیٹھے تھے۔ اب جب وہ میرے گھر میں تھے تو مجھے رات کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ فلیٹ پہلے سے ہی زیادہ روشن لگتا تھا۔ ان کے ہونے سے خاموشی ختم ہو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر خود دودھ والے سے دودھ لے لیتے تھے، اخبار خود اٹھا لیتے تھے اور ہال میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ وہ کبھی مجھے آواز دے کر نہیں بلاتے تھے، بس اتنا کہتے تھے کہ بیٹا اٹھ گئی ہو، چلو ٹھیک ہے۔ میں جس وقت اٹھتی تھی ناشتہ بنا دیتی تھی، ان کے کپڑے دھو دیتی تھی اور وہ پورا دن یا تو اخبار پڑھتے یا ٹی وی پر خبریں سنتے یا پھر سو جاتے تھے۔ ان کے ہونے سے مجھے فی الحال کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے، میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی تب سے جب سے ان کے والد صاحب میرے گھر آئے تھے۔ ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، لیکن میں پرسکون تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے۔ پھر ایک رات ان کا فون آیا، ان سے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے پھر سے باپ مل گیا ہے۔ میں ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اب خرچے کے سارے پیسے بھی میرے پاس آنے لگے تھے۔ جو میرا شوہر اپنے باپ کے لیے الگ سے خرچہ بھیجتا تھا وہ بھی مجھے ہی بھیجنے لگا تھا۔ میرے لیے یہ ایک طرح سے فائدہ تھا کیونکہ وہ حساب کتاب بھی نہیں لیتا تھا۔ میں جب چاہتی خرچ کر لیتی اور جو چاہتی خرید لیتی۔ زندگی جیسے ایک سیدھی لائن میں چلنے لگی تھی، مگر پھر ایک دن ایسی صبح آئی جس نے میری نیند، میری سوچ اور میرا سکون سب کچھ بدل دیا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، باہر ہلکی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، سب کچھ شانت سا لگ رہا تھا۔ میں نے نیند میں کروٹ لی اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو میرے سسر میرے بستر کے پاس میرے سر کے بل کھڑے تھے۔ میرا دل ایک دم دھڑکنے لگا جیسے کسی نے مجھے کسی خواب سے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر کیا اور ہڑبڑا کر بولے کہ ابو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ عام انداز میں بولے کہ وہ دودھ والا کہہ رہا ہے اپنے پیسے لے لو۔ میں نے کہا کہ اچھا جی میں لاتی ہوں، آپ جائیں میں دے دیتی ہوں۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر چلے گئے۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، میری سانس تیز تھی۔ میں سوچتی رہی کہ وہ کب سے میرے سر پر کھڑے تھے اور کیوں میرے کمرے میں بغیر اجازت آ گئے۔ کیا وہ دروازے پر دستک نہیں دے سکتے تھے؟ پھر دل نے کہا کہ شاید بوڑھے ہیں، بھول گئے ہوں گے، یا ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی ہوگی کہ عورت کے کمرے میں یوں اچانک داخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا اور پیسے نکال کر دودھ والے کو دے دیے، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ اب جب میں جھاڑو لگاتی یا برتن دھوتی تو مجھے اکثر لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے میں نے یہ سوچا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ واقعی میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، بہت غور سے، جیسے میری حرکت پر نہیں بلکہ مجھ پر نظر رکھے ہو۔ پہلے میں نے سوچا کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کام کیسے کرتی ہوں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی نظروں کا انداز بدلنے لگا۔ ایک دن جب میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ذرا مسکرائے اور ہونٹوں پر زبان پھیر لی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میرے دل کو ہلا گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے پتھر کی ہو گئی، میرے ہاتھوں سے برتن گرنے والے تھے۔ میں عورت تھی اور اتنی سمجھ تو رکھتی تھی کہ مرد کی نظر کی پہچان کر سکوں۔ ان کے چہرے کے تاثرات تو وہ ہی نہیں تھے جو ایک سسر کے ہونے چاہیے۔ میں نے اگنور کرنے کی کوشش کی، خود کو سمجھایا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر پھر ان کی باتوں نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ ایک دن میں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، مریم تم بہت خوبصورت ہو، میرا بیٹا تو پاگل ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کبھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا۔ میں سن کر جیسے پتھر کی مورت بن گئی، میرے دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خاموش رہی، مگر وہ بولتے ہی گئے، کہنے لگے یاد تو آتی ہوگی رات کو میرے بیٹے کی، اکیلی سوتی ہوں گی، دل تو کرتا ہوگا کوئی پاس ہو۔ میں گہرے صدمے میں تھی، میرے ذہن میں الفاظ گونج رہے تھے مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دوں، کیا کہوں۔ میں نے سوچا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں جسے اپنے باپ کا درجہ دے کر گھر لائی وہ مجھ سے ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی مگر چپ تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے شور مچایا تو شاید سب کچھ بکھر جائے گا۔ مگر اب مجھے یہ سمجھ آ چکا تھا کہ اس گھر میں میرا سکون ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اشاروں میں پوچھنا شروع کیا کہ آپ کے والد
والدہ किस उम्र में दुनिया से गई थी, वो फ़ोन पर थका हुआ लहज़ा, मगर मैंने फिर भी पूछ लिया। उसने आहिस्ता से कहा कि 40 साल की उम्र में। मैंने चौंक कर कहा, ये तो बहुत कम उम्र है। कहने लगा, हाँ बीमार थी इसलिए चली गई। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर बोली कि फिर आपके वालिद साहब ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? उसने ज़रा सख्त लहजे में कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने पूछा कि आप अपने बाबा से नफ़रत क्यों करते हैं? तो कहने लगा कि नफ़रत नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता हूँ। मैंने कहा कि क्यों, कि कोई बात हुई है? तो मैं घबरा गई और कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसने कहा कि बात होनी भी नहीं चाहिए, और अगर हुई भी तो मुझे ना बताना, क्योंकि ये सब कुछ तुमने खुद बिगाड़ा है। मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था। मैंने तुम्हें इज्जत से अलग फ्लैट में रखा था, जो कि लड़कियां रहने के लिए तरसती हैं। तुम्हें हर सहूलत दी थी, खुद जाकर ससुर उठा के ले आई। अब अगर तुमने कहा कि वे तुम्हें कुछ कहते हैं या तुमसे उनके काम नहीं होते, तो याद रखना तुम भी मेरी नज़रों से गिर जाओगी और दिल से उतर जाओगी। मैं उसकी बातों से बहुत दुखी हो गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ये सवाल सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी। मगर दिल के अंदर खौफ बैठ गया था। अब मैं यकीन के साथ कह सकती थी कि मेरे ससुर की नीयत ठीक नहीं थी। वो मुझ पर बुरी नज़र रख रहे थे। मैं हैरान थी कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा थी, लेकिन उनकी हरकतों का कोई जवाब नहीं था। शायद उनकी बीवी जवानी में ही मर गई थी और उसके बाद वे दोस्त से शादी ना कर सके। मगर उसका मतलब ये नहीं था कि वे ऐसी नज़रों से अपनी बहू को देखे। मैं सोचती रही कि ये गलती उनकी ज़िंदगी की नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी की सज़ा बन गई है। मैं हर लम्हा उनकी निगाहों से बचने की कोशिश करती, लेकिन वे जहाँ मैं जाती वहीं पहुँच जाते। कभी पानी मांगने के बहाने, कभी कुछ बात पूछने के लिए। और अब मैं खुद को कैद सा महसूस करने लगी थी। मेरा शौहर भी जैसे बदल सा गया था। पहले बात करते वक्त प्यार से बोलता था, मगर अब हर लफ्ज़ में सख्ती थी। मैंने एक दिन कहा कि आपको मुझसे मिले हुए 6 महीने हो गए हैं, अब आप कब आएंगे? तो कहने लगे, जब तक वो आदमी इस घर में है मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मैंने हैरानी से पूछा कि अगर इतनी ही नफ़रत है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहने लगा, तुम्हें तो समझ नहीं आई कि मैंने अपने बाप को अलग किराए के घर में क्यों रखा? इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो होगी, मगर तुम्हें तो समझ ही नहीं आई। तुम्हें तो ससुर की खिदमत करनी थी, अब बैठो और खिदमत करो। मैं अपनी मर्ज़ी से आऊँगा। उसके अल्फाज मेरे दिल पर किसी तीर खंजर की तरह लगे। मैं सोचने लगी, ये कैसी खिदमत है जो एक औरत के वजूद को खौफ में बदल देती है, जिसमें इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का कोई एहसास नहीं रहता। मैंने फ़ैसला किया कि अब मुझे खुद ही अपने लिए कुछ सोचना होगा, क्योंकि अगर मैंने खामोशी ना तोड़ी तो शायद मेरी ज़िंदगी किसी बड़ी तबाही का शिकार हो जाएगी। एक दिन मैं सुबह सवेरे घर के काम कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के शीशों से पानी के कतरे अंदर की दीवारों पर टपक रहे थे। मौसम बड़ा खूबसूरत था, मगर मेरे दिल में उदासी छाई हुई थी। मुझे अपने शौहर की बहुत याद आ रही थी। वो अक्सर ऐसे मौसम में मेरे साथ बैठकर चाय पीते थे और कहते थे कि बारिश में सबसे ज़्यादा सुकून होता है। मैंने चाय बनाई तो यादों के साथ आंखों में आंसू आ गए। मैं बावर्ची खाने में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर मुझे मुसलसल देख रहे हैं। उनकी नज़रें मुझ पर जम गई। मैंने सर झुकाकर अपना काम जारी रखा, मगर वो नज़रें मेरे दिल में जैसे कांटों की तरह चुभ गई। मैंने दिल ही दिल में कहा कि शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन जब मैंने कई बार फिर निगाह उठाकर देखा तो वे वाकई मेरी तरफ देख रहे थे, और फिर उनके चेहरे पर एक अजीब से तासुरात थे। थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आए और कहने लगे, इधर आओ मेरे पास, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा, जी कहिए, क्या बात है? वे कहने लगे कि मुझे दूध पीना है। मैंने हैरत से कहा कि अभी तो आपने नाश्ते में पूरा गिलास दूध पिया है। खैर, मैंने सोचा कि हो सकता है उनका दिल चाह रहा हो, तो मैंने कहा, अच्छा भी ले आती हूँ गर्म करके। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने घबरा कर कहा कि आप हाथ छोड़े, मगर उन्होंने कहा कि मेरी बात तो सुनो, जो तुम समझ रही हो वह नहीं है। मैंने उनकी आंखों में देखा तो वहाँ एक खौफनाक चमक थी और उनकी आवाज़ बदल चुकी थी। वो कहने लगे कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी बीवी भी जल्दी दुनिया से चली गई थी। तुम्हें तो पता है कि अकेलापन कितना काट खाने को दौड़ता है। उनके अल्फाज मेरे जिस्म में बिजली की तरह दौड़ गए। वे कुछ अजीब अजीब बातें करने लगे। मैंने हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी गिरफ्त सख्त थी। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा दिल काँप रहा था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरे शौहर अंदर आए। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरत दोनों थे। उन्होंने 2 कदम में फासला तय किया और मेरे हाथ को उनके हाथ से छुड़वाया। मैं पसीने में डूबी हुई थी, कपड़े गीले हो गए थे। मेरे शौहर ने मुझे कमरे में बिठाया, मेरा हाथ काँप रहे थे। वो पानी का गिलास लाए और मेरे होठों से लगाया। मैं काँपती हुई आवाज़ में कहने लगी कि मैं तो बस दूध लेने जा रही थी। वो बोले, तुम अभी कुछ ना कहो, इधर ही बैठो, मैं आती
आता हूँ। मैंने दरवाजे के बाहर हलचल सुनी, उनकी आवाज़ बुलंद हुई, फिर खामोशी छा गई। फिर वो कहीं चले गए। मैं डरी सहमी बैठी रही। वक्त गुजरता गया। बाहर की बारिश रुक चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे दिल का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। शाम के 4 बज गए, मगर ना शौहर वापस आए ना ससुर। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। आखिरकार जब दरवाज़ा खुला तो मेरे शौहर वापस आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने फ़ौरन पूछा कि क्या हुआ, वो कहाँ गए? उन्होंने आहिस्ता से कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो मेरे पास बैठे और बोले, तुमने मेरे साथ ज़िद लगाई थी तो मुझे भी गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने भी ज़िद में तुम्हें सारी बात नहीं बताई। असल बात यह है कि मेरे बाबा मेरी अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी बीवी जल्दी इस दुनिया से चली गई थी। वो उनके बाद कभी संभल नहीं पाए। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। वो इस सदमे में कुछ नफसियाती हो गए थे। उन्होंने गहरा सांस लिया और कहा कि कभी कभी उनको ऐसा दौरा पड़ता है जिसमें वे ये समझने लगते हैं कि वो औरत उनके सामने है, वे उनकी बीवी है। शायद आज भी उनको ऐसा ही कोई दौरा पड़ा था और वे तुम्हें अपनी बीवी समझने लगे। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वक्त पर पहुँच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने रोते हुए कहा कि उनको कहाँ भेज दिया? तो कहने लगे कि अब उनके हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इसलिए मैंने उन्हें अस्पताल में दाखिला करवा दिया ताकि उनका इलाज हो सके। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मुझे आपसे ज़िद नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि कोई बात नहीं, मैंने भी ज़िद की थी। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, वे वहाँ ठीक रहेंगे, उनका इलाज हो जाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे बारिश के बाद भी दिल की ज़मीन गीली रह गई हो। उसके बाद एक दिन मैं अपने शौहर के साथ अस्पताल गई ताकि अपने ससुर से मिल सकूं। अस्पताल की राहदारी में दवाइयों की बदबू फैली हुई थी। नर्सें आ जा रही थी और हर तरफ मरीजों की करहारें सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब उनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो दिल में अजीब सी घबराहट थी। पता नहीं क्यों डर लग रहा था। शायद उस दिन की याद अब भी मेरे दिल में जिंदा थी। मगर मैंने हिम्मत की और अंदर दाखिल हुई। मेरे ससुर बिस्तर पर लेटे हुए थे। चेहरे पर कमज़ोरी साफ नज़र आ रही थी। आंखों के गिर्द हल्के गड्ढे पड़ गए थे, मगर जैसे ही उन्होंने हमें देखा तो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे पास बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनके करीब पहुंची तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मेरी प्यारी बेटी कैसी हो तुम? उनकी आवाज़ में नरमी थी और जैसे बाप अपनी बेटी को दुआएं दे रहा हो। उनके लहजे में अब वह शिद्दत नहीं थी जो पहले थी, बल्कि एक अजीब सी मासूमियत आ गई थी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि अब वे पहले जैसे नहीं रहे। मेरा दिल भर आया। उनकी आंखों में नमी थी, जैसे वे खुद अपने किए पर शर्मिंदा हैं। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? तो कहने लगे, बस अब थोड़ा बेहतर हूँ, दुआएं चाहिए। मेरा दिल दुख से भर गया कि इतने बड़े आदमी को बीमारी ने कैसे तोड़ कर रख दिया। मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, डॉक्टर भी अच्छे हैं और यहाँ उनके जैसे कुछ पुराने दोस्त भी हैं जो उनके साथ रहते हैं। हम दोनों ने उनके लिए फल लाए थे। मैंने उनको सेब का टुकड़ा दिया तो कहने लगे, बेटा ये तुम्हारे हाथ का है, इसलिए सबसे मीठा है। मुस्कुराती मगर आंखों में आंसू थे। मेरे शौहर ने मुझे देखा और सर के इशारे से कहा कि हिम्मत रखो। मैंने खुद को संभाला और दुआ दी कि वे जल्दी ठीक हो जाएं। हम अस्पताल से निकले तो रास्ते में बारिश की हल्की फव्वार शुरू हो गई। हवा में ठंडक थी और गाड़ी की खिड़की पर बारिश की कतरे गिर रही थी। मैं चुप बैठी थी। मेरा शौहर मुसलसल ड्राइव कर रहा था। फिर उसने गहरा सांस लिया और कहा कि अब मैं तुम्हें पूरी बात बता देता हूँ, तुम्हें हक है सब कुछ जानने का। उसने कहा कि मेरी अम्मी अब्बू में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत ने उन दोनों का ज़्यादा वक्त नहीं दिया। मेरी माँ 40 की उम्र में दुनिया से चली गई। उसके बाद मेरे अब्बू टूट गए। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हमने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझते, मेरी दुनिया तो चली गई। वो दिनों दिन बदल गए। कभी कभी उनको गुस्से के दौरे पड़ते, कभी अजीब बातें करते। मैं उनको संभाल नहीं पाता था। फिर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनके आसपास किसी औरत का रहना ख़तरनाक है, क्योंकि वे माजी तौर पर हालत समझने लगे हैं। इसलिए मैंने उनको अकेला किराए के घर में रखा था। मैंने धीरे से पूछा कि फिर वह मेरे साथ क्यों भेजे गए थे? उसने कहा कि जब तुम अकेली रहने से घबरा रही थी तो मैंने चाहा कि तुम्हें सहारा मिल जाए, और मैंने अपनी एक दोस्त से बात की कि तुम्हें कोई नज़दीक रहने वाली फैमिली से मदद मिल जाए। मगर मेरे उस दोस्त की बीवी ने तुम्हें गलत मशवरा दिया। उसने तुमसे कहा कि मेरे वालिद को अपने पास ले आओ, क्योंकि वे चाहती थी कि मैं उनके घर का किराया छोड़ दूँ। दरअसल वह घर उनका था और वह चाहती थी कि वह खाली हो जाए ताकि कोई बड़ा किराएदार आ सके। मैं हैरान रह गई। मैंने दुख भरी आवाज़
आवाज़ में कहा कि मतलब लोगों की नीयतें इतनी गंदी हो सकती हैं, वो तो हमें अपना खैरक दिखाते थे। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, दुनिया में अक्सर लोग जैसे नज़र आते हैं वैसे नहीं होते। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि दुनिया को मेरी नज़रों से देखो, क्योंकि मैं उन रास्तों पर तुमसे पहले चला हूँ। अगर तुम खुद चल जाने की कोशिश करोगी तो कोई ठोकर खाओगी, लेकिन अगर मेरा तजुर्बा मान लोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मैंने ज़िद की थी और इस ज़िद ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में लिया और कहा कि अब सब ठीक है, अब्बू की हालत बेहतर हो जाएगी और हम दोनों एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ मोहब्बत की एक चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उस दिन के बाद हमारे बीच की दुनिया ख़त्म होने लगी। वो जो कभी मुझसे दूर रहता था अब हर वक्त मेरे साथ रहता था। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते, हंसते मुस्कुराते, खाना साथ खाते, फिल्में देखते और रातों को छत पर जाकर बारिश के साथ ये खुशबू सूंघते। मैं सोचती थी कि शायद ज़िंदगी अब संवरने लगी है। मुझे लगता था जैसे हमारी शादी अभी हुई हो। मेरे शौहर ने अब अपनी नौकरी भी इसी शहर में मुंतकिल कर ली थी। वो रोज़ सुबह काम पर जाता और शाम को वापस आता। घर में रौनक सी लगने लगी थी। उसके आने की आवाज़ पर मेरा दिल खुश हो जाता। मैं दरवाज़ा खोलकर मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करती। वो मुस्कुरा कर कहता, मरियम मेरी मरियम, अब तो लगता है ये घर घर बन गया है। मैंने भी दिल से कहा कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ मुकम्मल है और मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा ही हमेशा रहे। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अपने शौहर की बात माननी चाहिए। जब आप उसकी दुनिया में कदम रखें तो आपको उस दुनिया को उसकी नज़र से ही देखना चाहिए। इसी में आफ़ियत होती है। उसमें जो कुछ कहा था अगर मैं मान लेती तो मेरे साथ ये तजुर्बा ना होता। मुझे पता है मेरे ससुर की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने जो किया जानबूझ के नहीं किया, लेकिन जिस तरह मैं डर गई थी और अगर मेरा शौहर उस टाइम वक्त पर नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने तो नेकी की थी। मुझे लगा कि वे अकेले रह रहे हैं तो मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। अब आप लोग ही बताओ मैंने सही किया या गलत, और अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करते। धन्यवाद दोस्तों।